and very good evening to all of you out there and very very happy new year 2013 to all of you। जी हाँ, नया साल शुरू हुए तो 6 दिन हो गए और मैं इतनी दिन बाद आपको विश कर रही हूँ यार, मौका ही नहीं लगा कि मैं आपको विश कर पाती ऑन एयर। वेल, अब मेरे साथ आ गई हैं रेवा कुमार जो बहुत एक्साइटेड है 2013 का रेडियो पे फर्स्ट शो के लिए। और जैसा पिछले साल उन्होंने हमारी वास्तु प्रिंसिपल्स के थ्रू और वास्तु के थ्रू हमारी बहुत हेल्प करी, वेदर इट वाज फाइनेंस, पर्सनल, होम, बिजनेस, मोटेल और anything related to our health also. She helped us a lot according to Vastu principle, and today she is with us again. And if you have any question related to Vastu and if you want Reva ji to visit you, you can call her at her personal number 510-868-3338, and I highly recommend to visit her website because there's so many things she talks about on her show, and we miss something. Visit her website where she posts regular blogs, and her website is divinevastu.net. And let's welcome Reva Kumar. Hello Reva ji and very good evening, very happy new year to you. Thank you शालिनी, very very good evening। और 2013 में शालिनी आज मेरे साथ इस 2000 चलते चलते में मेरे साथ जुड़ चुकी है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 2012 जब खत्म हुआ था तब भी वो मेरे साथ थी और 2013 के पहले शो में शालिनी मेरे साथ है। तो लिसनर्स, शालिनी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे चलते चलते में आपके साथ चलाती है। Wow, thank you so much. Pleasure is ours, Reva ji. People just love listening to you and you give us wonderful tips and how to live in complete harmony with earth and how to balance our 5 elements. इतना कुछ सीखा हमने पिछले साल में and 2013 सुनते ही I mean regenerate हो जाती है and I feel oh my god, so many wonderful things are lined up for me and it's all positive energy which we get from you. So my very first question for this 2013, going back to roots, as you claim and as we heard, Vastu is a science. So what are the scientific relevance or scientific points you can give to prove that Vastu is a science? Wow, that's very good. सबसे पहले listeners कहूंगी कि that please remember it always that Vastu advices and remedies suggested during this show are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of architect, that is Vastu Shastra. Now Shalini is saying कि इसकी scientific relevance क्या है वास्तु शास्त्र की। मैं इतना कहना चाहती हूँ लिसनर दैट वास्तु साइंस इज अ ग्रेट साइंस फंडामेंटली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, बायो एनर्जी, एनवायरमेंट, नेचुरल फोर्स एंड द सोलर सिस्टम। क्योंकि ऐसा होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन द नेचर। तो जब interaction of these 2 forces, जिसको हम cosmic कहते हैं, and produced a 3rd type of force which is bioforce. That bioforce needs life to exist. तो 1 type of force is subtle and final, जिसको आप positive energy कहते हैं, और दूसरी जिसको dark and dense, जो negative energy होती है। तो हमेशा याद रखिए कि जो इसका scientific relevance है वास्तुशास्त्र का, कि जो भी स्ट्रक्चर हम surface of the earth में to earth पे, जमीन पे जो भी हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, it comes in the way of a natural interaction. तो इफ स्ट्रक्चर इज डिजाइन विद दैट पॉजिटिव फोर्स, तो नेचुरली आपको मीन्स कि पॉजिटिव डिजाइन का कि जो नेगेटिव जो भी उसकी फोर्स है उसको ओवरराइड करके अगर जो भी स्ट्रक्चर बना जाता है तो हमेशा याद रखिए दैट विल बी बेनिफिशियल टू, एंड इट ऑलवेज रेडी टू गिव यू द पॉजिटिव बायो एनर्जी जो घर के हर सदस्य को, हर मेंबर्स को, घर पे, बिजनेस पे, हर चीज के लिए काफी हेल्प करती है। इट विल बी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ फॉर all the inhabitants. तो वास्तु शास्त्र जिसकी नेचुरल फोर्स है फायर, water, air, earth and space. Because listeners, Shalini, earth has a magnetic and gravitational force. So we all know that earth jo itself is a very big magnetic. Air has the ability to keep organism alive. Water है that is very essential medium. Fire as solar and radiations are very source of driving force and it gives us energy also. Space is जिसको हम senses की तरह समझते हैं. It played the fundamental role in the life process. तो वास्तु science is the art of correct placement of these forces in your home to bring harmony,
peace, wealth and living in harmony with the earth, which I always say. तो इसकी साइंटिफिक रेलिवेंस यही है कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ये ओवरपावर करता है. और अगर हमारा घर, अगर बिजनेस, अगर ऑफिस, एनीथिंग इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स, आप क्या पाते हैं? आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाते हैं. कई बार ऐसा भी होता है लिसनर्स कि हम सोचते हैं कि वी आर डूइंग गुड, तो हमारे को वास्तु का कोई जरूरत नहीं है. जी नहीं. उस समय भी आप देखिए कि आपको वास्तु को फॉलो करना, उससे क्या होगा कि अगर आप अच्छा है, आप और भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. कई बार अगर हम फील करते हैं कि हम वी आर डूइंग गुड ऑफिस में, बट लेकिन हमारे पावर को, हमारे वर्क को कोई भी नजर नहीं रख रहा, या हमारी कोई भी हमारी पोटेंशियल को एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं उसको, उस समय देखिए कि कहीं वास्तु डिफेक्ट तो नहीं. समटाइम्स जिस बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ में हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, या पेरेंट्स जिनकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं पेरेंट्स के साथ में कई बार हमारे आपस में डिफरेंसेस आ जाते हैं. लव पार्टनर्स जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद में ही कहीं ना कहीं आप लोगों की डिफरेंसेस आते हैं. इट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद दैम, चाहे वो बिजनेस हो, कैरियर हो, प्रमोशंस है, नहीं हो रही, स्टेगनेट हो गया. जब मैं विजिट करने जाती हूँ, मैं इन चीजों को देखती हूँ कि वो डायरेक्शंस बता रही हैं कि ही इज सो इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन आफ्टर दैट ही इज नॉट गेटिंग द प्रमोशंस. व्हाई ही इज स्टेगनेट? इट मीन्स देयर इज अ वास्तु डिफेक्ट, क्योंकि वो एयर वेस्ट एरिया मिसिंग है. बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद में भी यू आर नॉट गेटिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ लिटिगेशंस, केसेस. व्हाई इट इज सो? पैसा आ रहा है, बट यू आर नॉट एंजॉयिंग दैट मनी, यू आर नॉट एंजॉयिंग दैट वेल्थ. अगर आप घर पर आते हैं, घर से बाहर, इट्स ओके, यू आर हैविंग ए फन विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन. इवन कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में भी घर से बाहर हैं, इट इज ओके, लेकिन घर की दीवार में आते ही आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, उस बेडरूम में जाते ही आपके आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं. इट मीन्स देयर इज ए वास्तु डिफेक्ट. तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, साइंटिफिक रेलेवेंस इसकी आपको शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इन वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं, तो हम इन सब चीजों से बाहर आकर अपनी लाइफ में हार्मनी लेकर आ सकते हैं, पीस लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से ग्रो कर सकते हैं. रेवा जी, ये तो होगी इसकी साइंटिफिक रेलेवेंस. अब चलते हैं थोड़ा नए साल की तरफ. सारे लोग न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बना रहे हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि मोर देन 50% पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस, और दे वांट टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंसेस, एंड रेस्ट ऑफ देम दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. यही कॉमन रेजोल्यूशंस है. सो गोइंग बैक टू फाइनेंसेस, मैंने सुना कि आप आजकल बहुत कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ आपका मीटिंग है, एंड देन यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ बिजनेसेस लेटली. सो आप हमें फाइनेंस की तरफ लेके चलिए. तो कौन से ऐसे वास्तु के प्रिंसिपल हैं जो हमारे फाइनेंस को या फिर हमारे बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं? दोज आर द मोस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप वो वाली हमें टिप्स दीजिए या फिर प्रिंसिपल्स बताइए. आपने बहुत अच्छा किया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट कॉर्पोरेट ऑफिस जिन्होंने 2013 में मुझे अपना पहला ब्रेक दिया, एंड वेल नोन. मैं बहुत जल्दी उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगी शालिनी आपके साथ शो में, जिन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा ब्रेक भी दिया कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ में. इससे पहले भी मैं काफी ऑफिस के साथ करी थी, लेकिन दैट इज द बिगेस्ट वन जो मेरे पास 2013 में मैंने वेरी फर्स्ट जनवरी 1 को ही मैंने उनके साथ ज्वाइन किया. दैट्स वंडरफुल टू नो, एंड आई एम श्योर दे आर गेटिंग सम गुड हेल्प फ्रॉम यू. लेकिन मैं इससे कोई भी, चाहे अगर हम किसी के आगे, अगर हम एम्प्लॉय भी हैं, जॉब करते हैं, चाहे वो आईटी कंपनी है, चाहे वो कोई भी है, तो इट मीन्स कि वो बिजनेस है जहां पर हम काम करते हैं. तो ये नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये आपको फायदा नहीं देगा. जी नहीं, ये आपके लिए भी उतना बेनिफिशियल है जितना आपके एम्प्लॉय के लिए है, जितना आपके एम्प्लॉयर के लिए है, जितना अगर आपका अपना बिजनेस सेटअप है उनके लिए है, या अगर आप उनके यहाँ पे जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, आपके लिए भी है. So you mean to say that it impacts the whole environment, yes, not an individual. So it brings if everyone else is doing good, there are chances that you will grow also. This is very important. I am going to share with all of the listeners. और मुझे बहुत उम्मीद है कि जैसे 2012 में जो भी हमने आपके साथ शेयर किया वो आप लोगों को बहुत हेल्प मिला, उसी तरह 2013 में भी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर हम वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स को, वास्तु के कुछ पॉइंट्स को बिजनेस
बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत फायदा देते हैं। सबसे पहले है, अगर आप देखेंगे कि डायरेक्टर्स ऑफिस जहां आपके सीईओ ने बैठना है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस का जो बिजनेस प्लेस की जो आप कह सकते हैं कि डिजाइन करना है, प्रॉपर प्लेस देनी है जहां पे उन्होंने, दैट इज द मोस्ट यू कैन से दैट डोमिनेटिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ऑफ योर प्लेस बिजनेस का, वो है डायरेक्टर ऑफिस। सेकंड, मेन गेट। मेन गेट की मैं बात कर रही हूं। मेन गेट की जो हमारे बाउंड्री वॉल से रिलेटेड होता है, जहां से हर किसी ने एग्जिट करना है, वहां से आपको गाड़ी भी निकालनी है, पार्किंग भी करनी है, सब कुछ करना। थर्ड आता है आपका एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट आफ्टर द मेन गेट। मेन गेट हो गया, उसके बाद एंट्रेंस गेट जहां से आपने खुद भी एंजॉय करना है, बीइंग अ सीईओ, बीइंग द ऑनर ऑफ दैट प्रेमिसेस, तो भी आपने उससे एंटर करना है, प्लस आपके साथ साथ अगर आपके एम्प्लॉयज हैं उन्होंने करना है, या आपके जो क्लाइंट्स है या जो भी आपके गेस्ट आते हैं उन्होंने। नेक्स्ट आता है इसके अलावा वास्तु जो हम करते हैं, दैट इज फॉर द इंटरनल डोर्स। इंटरनल डोर्स मीन कि अगर हमारे जो ऑनर है उसके ऑफिस का डोर कितना बड़ा है, उसकी लेंथ विड्थ क्या है, प्लस इसके साथ में अगर वेयर हाउस है उसके सेक्शंस को डिवाइड करके कौन कौन सा डोर किस डायरेक्शंस में आता है। मीन अगर ऑपरेशन सेक्शन है उसके डोर का ये क्या मेजरमेंट है, या ऑपरेशन के अलावा बाकी जो रूम्स हैं, चाहे वो वीपी का रूम बनाया गया है, चाहे वो किसी गेस्ट के लिए रूम्स बनाए गए हैं, तो उनके रूम्स की क्या पोजीशन है। नेक्स्ट, विंडोज। मोस्ट ऑफ द विंडोज कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि उस विंडो को गलत डायरेक्शन में हो कि जहां पर आपको ज्यादा नेगेटिविटी मिले, और अगर विंडोज खास तौर पे कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर विंडोज की सही प्लेसमेंट नहीं होती तो वहां से हमारे को बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बहुत ही जरूरत है कॉर्पोरेट ऑफिस का इंडस्ट्रियल प्लॉट का लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ के बीच में उनका मेजरमेंट क्या है, क्या उसकी प्रॉपर शेप दिया गया है कि नहीं। लेंथ और विड्थ में इंडस्ट्रियल प्लॉट के साथ में कॉर्पोरेट ऑफिस में हम काउंट करते हैं ऑपरेशनल से लेके वेयर हाउस से लेके उसके कुछ हिस्से को, जिसको हम कह सकते हैं कि 4:6 6% रेशो जो होती है वो हमारी स्पेशियस होती है। 4 में हम लोग ऑफिस को ले जाते हैं, जहां 6 है वो आपको छोड़ दिया जाता है बिल्टअप एरिया के लिए, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे को कंस्ट्रक्टेड एरिया की भी लेंथ और विड्थ को भी हम प्रॉपर दिमाग में रख के चलते हैं कि इसका हमें कहां से कितना डिवाइड करना है। बहुत ही जरूरी होता है, दैट्स ओपन स्पेस एंड द कोर्टयार्ड। अगर बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर ओपन स्पेस या कोर्टयार्ड प्रॉपर नहीं है तो आप उसकी अगर रेशो को डिवाइड नहीं करेंगे, ताकि वहां से हमारे को आती है पॉजिटिव एनर्जी जो हमारी इनहेंस होती है, या जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको आप दूर कर सकते हैं। अगर वहां पे प्रॉपर ओपन कोर्टयार्ड होगा या प्रॉपर स्पेस होगी तो आप उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी। कहां से अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने की जगह वो कहां है, क्योंकि उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी में एक सिंगल हैंड आदमी का काम हो, वहां पे तरह तरह के लोग होते हैं। देन वी हैव टू सी कि ये प्रोडक्टिविटी किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये फायर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या ये वाटर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हम उसी कॉर्नर को डिफाइन करेंगे। क्वालिटी यू वांट, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा बिजनेस में तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। उसकी क्वालिटी को और भी फाइन करने के लिए, शालिनी जैसे हीरा तराशते हैं, हीरा तराशने के लिए ये नहीं है कि अगर आप किसी ज्वेलर को बोलिए लो इसको हीरा तराश दीजिए, वो हीरा नहीं तराश पाएगा। हीरा तराशने के लिए आपको वही ज्वेलरी चाहिए जो उस हीरे की प्रॉपर पहचान करता है, या उसके हीरे को किस तरह से वो शेप्स में काट सकता है, क्या उसको वो डायमंड शेप में काटेगा या किस शेप में काटेगा। इसी तरह से हमेशा याद रखिए लिसनर्स कि कॉर्पोरेट ऑफिस और बिजनेस प्लेस के लिए इफ यू आर हैविंग ए प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट एक्सपर्ट विथ यू, कि जो आपको क्वालिटी को अगर आपकी इनहेंस कर सकता है, दैट विल गिव यू द गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, टू स्टॉप एक्सीडेंट्स। स्टॉप एक्सीडेंट्स में ये नहीं कि गाड़ी से गाड़ी ही भिड़नी है, मीन्स कि भगवान नहीं करे कोई भी आपके साथ वहां पर एक्सीडेंट हो जाए। अभी मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कुछ दिनों पहले थी, मुझे पता चला वहां केमिकल्स के साथ भी किसी को एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके के
अचानक ही मिसफॉर्चून जिसको कह सकते हैं एनर्जीज को, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इन बिजनेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, तो नेचुरली यू नीड द स्टेबिलिटी ऑल्सो। यू डोंट वांट कि अगर आपका 3 दिन प्रोडक्ट आपका निकला, चौथे दिन आपका नाम नहीं रहे। नो, वी वांट द स्टेबिलिटी। कंट्रोल ऑफ लेबर अनरेस्ट, दैट इज ऑल्सो मस्ट, कि कई बार लेबर होती है वो अनरेस्ट हो जाती है, उनको मोटिवेट करना है, उसके लिए भी हमारे को एरिया चाहिए ताकि उनमें एनर्जी हो, उनको ड्राइविंग फोर्स मिले और वो आगे जाए। इसके साथ साथ नया से नया हम बिजनेस ऑर्डर्स ले सकें। बिजनेस ऑर्डर्स में ये होता है जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो भी हमारे से बायर्स हैं, हम उनके साथ अपने रिलेशंस कैसे बनाएं। मीटिंग रूम शुड बी इन अ प्रॉपर जगह, जहां पर आप मीटिंग रूम के बीच में अपने ही एम्प्लॉयज को समझा सकें कि आपका प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, उसकी क्या जरूरत है। कॉन्फ्रेंस रूम वेयर यू कैन डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ट्रेनिंग रूम कि कैसे हम उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहें। रॉ मटेरियल कहाँ रखेंगे, मशीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिश गुड कैसे पॉलिश करना है, कैसे फिनिशिंग गुड को रखना है ताकि वो प्रोडक्ट हमारा बिके। अगर वही फिनिश गुड उठाकर अगर आप साउथ वेस्ट में रखेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते। ऑलवेज रिमेंबर दैट फास्टर द लिफ्टिंग एंड सेल ऑफ फिनिश गुड इज द बेस्ट, हायर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज द बेस्ट, इज द नॉर्थ वेस्ट एरिया। देन इसके साथ साथ में आपका वाटर टैंक, अगर वाटर अंडर कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड अगर हमारी कहीं बोरवेल या हार्वेस्टिंग वाटर है, उसके लिए स्लोप बहुत जरूरी है। स्लोप के साथ साथ में बाथरूम टॉयलेट्स, प्लस अगर वहां पे स्टेयर्स हैं या स्टेयर केसेस। और नेक्स्ट आता है कॉलम बीम्स। कहीं बीम्स के अंडर तो नहीं हमारे एम्प्लॉयज बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंस का बंदा बीम के नीचे बैठ गया तो हमारा बिल्कुल फाइनेंस ही रुक जाएगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट इज कैश बॉक्स। जी हाँ, and the last but not the least one, probably the most important one. Right. Listeners, once again, you're listening to Vastu consultant Reva Kumar, who has been in this industry for more than 25 years with her research and with her knowledge and experience. She has helped thousands of people across the world, and lately she has been involved with a couple of corporate clients who had seen good results. और अभी वो बता रही थी कि finance और corporate market में या business में how to place certain things to get maximum result according to Vastu principle. Hopefully आपने वो note कर लिया होगा. Otherwise you can visit her website where she posts the regular blogs, and her website is divinevastu.net, and the number to call her after the show is 5108683338. We have few minutes left and she is ready to answer your questions. So the studio lines are open 510-770-1550. So business से related, health, wealth से related और personal questions भी हैं, anything regarding or pertaining to Vastu, give us a call in studio 510-770-1550. एंड रेवा जी, अब आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा सवाल है फाइनेंस से लेते हुए। आपने बोल दिया कैश बॉक्स, पर ना उसकी लोकेशन के बारे में आप कुछ बताया। आई नो ऑल द लाइन्स आर लेट अप। हम कैश फ्लो के बारे में या कैश बॉक्स के बारे में फिर बात करेंगे। सो लेट्स टेक सम कॉल्स बिफोर वी गेट इनटू मोर डिटेल्स। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। नमस्ते, मैं संदीप बोल रहा हूँ। रेवा जी, थैंक यू फॉर द ग्रेट इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड ऑन दिस शो। थैंक यू संदीप जी, यू वेलकम डियर। मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई जैसे काम करता है, घर से काम करते हैं या ऑफिस से काम करते हैं जी, तो किस डायरेक्शन में बैठकर सबसे फलदायी होता है काम करना, मतलब ऑफिस का काम? देखिए, ऑफिस का काम संदीप जी करने के लिए हमारे पास 2 पोजीशंस होती हैं। एक होता है या तो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एनर्जी लें या साउथ वेस्ट की तरफ से। तो अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है और उसी बेडरूम के ऊपर भी अगर आपके पास कोई रूम है तो आप वहां से अगर आप ऑपरेट करेंगे, नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और अगर आप कहते हैं कि सिंगल फ्लोर है तो साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है तब आप नॉर्थ ईस्ट के रूम में जाइए और नॉर्थ की तरफ फेस करिए। नॉर्थ में अगर विंडो है, ईस्ट की तरफ विंडो है, बिल्कुल उसको खोल दीजिए। जितना ज्यादा आप ले सकते हैं साउथ की वॉल, वेस्ट की वॉल को अपने पीछे रखिए। वाइल फेसिंग टू द नॉर्थ और ईस्ट आप अगर अपना बिजनेस या कुछ भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप उसको प्रोडक्ट भी है, कोई आप प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें ताकि वो जल्दी से सेल हो जाए। धन्यवाद जी। जो नॉर्थ ईस्ट है मैडम, वहाँ पे हमने ईशान कोण की वजह से साधना और प्रेयर रूम बना रखा
बिल्कुल, उससे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बिजनेस की जगह पे, क्या पूजा की जगह नहीं हम कर सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको एनर्जी मिलती है। वहां पर ईशान कोण है, आप नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आप इन तीनों जगह में से कोई भी एक जगह ले सकते हैं। और जहां पर ईशान कोण पे भगवान जी है उनको रखिए, और नॉर्थ की तरफ फेस करके आप अपना डेस्क लगाइए बिजनेस के लिए। Okay, thank you very much. You're welcome. लेते हैं। And Reva ji, we have tons of calls, so let's take calls and we'll get back to our question in a bit. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hello. 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 Yes. Yeah, I wanted to एक सवाल पूछना था कि अगर हम ऑफिस लेते हैं and the office is facing south but you're entering north, जी. is that a good step to do? Yeah, that's true. That it is good. If it is facing south and if you are entering to the north, there's no problem. Always remember, while for the residence purpose, we have to see about the south direction. But for the business, south is not bad. Okay, so facing south and entering north is good. Yeah, it is good. And the desk where we need to be sitting should be facing what side? The east side or the north side? It can be in the north or either east. There is no problem. But the west or the south wall should be behind you. The south wall should be behind us. Yeah, okay. West or south wall should be behind always. All right. Thank you so much. I You're appreciate it. रेवा जी, कॉल्स तो बहुत सारी हैं, सो मेरा क्वेश्चन का जवाब आप बाद में दे सकते हैं. सो लेट्स टेक सम कॉल्स. ओके, वी विल टेक कॉल्स इन अ बिट. एंड रेवा जी, अब मेरे सवाल का आप जल्दी से जवाब दे दीजिए एंड बिफोर वी गेट इनटू नेक्स्ट कॉलर. एंड मैंने आपको कहा कैश बॉक्स के बारे में कुछ पूछा था. कैश बॉक्स के लिए बिल्कुल आप जानना चाहती हैं, मैं जरूर बताऊंगी कि बिजनेस प्लेस में अगर आप अपना कैश बॉक्स रखना चाहते हैं तो इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर. वाइल ओपनिंग द ड्रॉ इट शुड गो टुवर्ड्स नॉर्थ. हमेशा रखिए साउथ वेस्ट में, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैंने जो आपको पहले ही बताया कि जो भी बिजनेस ऑनर है, अगर आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में अपनी सिटिंग की, अपनी बैठने की जगह बनाते हैं तो इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट. आप साउथ वेस्ट में बैठें और जब भी आप खोलें तो आपका कैश का जो है वो साउथ की वेस्ट नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए. इसके साथ साथ में हमेशा याद रखिए कि उसको यस कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार. हेलो हेलो. जी हाँ, आपने कॉल किया तो अपना सवाल भी जरूर पूछ लीजिए. रेवा जी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. रेवा जी, किसी ने कॉल किया और सवाल नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता, बट यू कैन ऑलवेज कॉल अस बैक एट 510-770-1550. Yeah, so going back to what we were talking. Yes. उसके साथ साथ में जहां पर आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में कॉर्पोरेट ऑफिस के बीच में आप सामान रखते हैं, कैश कॉर्नर में, वहां पर आप ग्रीन कलर का प्लांट नहीं देंगे. हमेशा याद रखिए, ग्रीन प्लांट को आप अवॉइड करेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर में. वहां पर आप येलो कलर के कोई भी फ्लावर्स का या येलो कलर के आप कह सकते हैं सिल्कन फ्लावर्स को दे दीजिए. ना तो ग्रीन कलर के कोई भी वहां पे हैवी प्लांट रखेंगे, ना ही आप ड्राई फ्लावर्स रखेंगे. So not artificial or not real one. क्योंकि साउथ वेस्ट, मैं सिर्फ ये कैश रूम के लिए बात कर रही हूँ कि जहां हमको कैश कॉर्नर बनाना है, उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ. प्लस थर्ड, आप एक और इम्पोर्टेंट याद रखिए, टेबल, शेप ऑफ द टेबल. शेप ऑफ द टेबल अवॉइड करें कि अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए. And let's take some callers. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi, I had a question. My sister-in-law was buying a house, and the number of the house was, when you count the number, like number 4. So was it a good thing or bad thing? Because according to Chinese, they say number 4 is bad. Mm-hmm. See, you can do one thing. You just addition. Yeah, you email me your date of birth and your full name. Let me see, and address also, the address of your house. Let me go through according to that which number is favorable. Okay. So you don't know, like, how about just the 4? Because Chinese, they just say number 4 doesn't good at all. So what do you say about that? See, if for the according, this question is related to the numerologist, so I would like to advise you for Mr. Ritesh Kumar, because for the Chinese number, for this number, he is the right person to help you. But I can only help you according to your date of birth, which direction is favorable and which
which number relates according to your date of birth. On that case, I can help you. So I need your date of birth and the correct address of your house. So let me go through properly that phone number is favorable for you or not. Okay, thank you, Reva. Thank you. And the email ID where you can send your questions or map or your date of birth is divineabc@gmail.com. रेवा जी, मुझे लगा कि वास्तु में न्यूमरोलॉजी मिक्स हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन था. Well, now listeners, she has few more minutes to left. If you have any question related to Vastu for your business, home or personal question, give us a call in studio and the number is 510-770-1550. रेवा जी, कुछ फाइनेंस या कॉर्पोरेट मार्केट के लिए आप कुछ ऐसी, आई नो यू हैव टॉक्ड इन डिटेल, आपने इलॉबरेट किया हर कॉर्नर को, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कहाँ एम्प्लॉयर्स को बिठाना है, कहाँ पर आपका कैश बॉक्स होना चाहिए एंड हाउ टू डिवाइड दैट एरिया. बट What is the single most important thing according to Vastu जो कि हमें बिजनेस में जरूर ध्यान रखनी चाहिए? That is the director's office. Oh, the CEO's office, the owner's. So the CEO office is the main. That is, you can say that is the backbone. अगर हमारा CEO ऑफिस करेक्ट जगह पर नहीं है, इट इज नॉट इन द साउथ वेस्ट, तो आप कोई भी बिजनेस हो आप उसको प्रॉपर नहीं रन कर पाएंगे. अगर वो सही जगह पर है तो आप सारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. So according to Vastu principles, the owner's office is the most prominent and important factor to define your business. Okay, so let's take few callers and let's see what questions they have for you. Hello, you are on air with Reva Kumar. Hi, I have a question. जैसे अभी रेवा जी बता रही थी कि you should never have a dining table which is black. So is there a shape also for a dining table or just the color? Yes, the color also and the shape is also. The shape should not be round. It should be, you can go for square or the rectangle or oval shape also, but not round. So you can buy, so you should never have a color black and never round. Yes, this is what. Thank you so much. You're always welcome. So those questions look basic, but I know they're very important questions. So रेवा जी, आपने बोला कि नहीं हो सकता है ब्लैक, बट महागुनी हो सकता है. Well, you got my point. Well, let's have some more callers. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi, रेवा जी से क्वेश्चन है. उन्होंने लास्ट वीक बताया था कि जी हाँ, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. हेलो, हाँ जी रेवा जी, मेरे को एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग पिरामिड. जी बताइए. तो एक मेरे फ्रंट में लगा हुआ है. इट्स ओके टू पुट द पिरामिड. उसके लिए कौन सी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है आपके घर की? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में है. नॉर्थ वेस्ट में पिरामिड आपने अगर लगाया है, कैसा पिरामिड है? किसी क्रिस्टल का है या किस चीज का बना हुआ है? गोल्ड प्लेटेड है, मेटल है? किस पर्पस में लगाया है ये नॉर्थ वेस्ट में? आपको किसी ने घर के बाहर दिया है लगाने को या अंदर? जी, ऐसे ही एक लाइक शो पीस था, सो मेरे को अच्छा लगा, तो मतलब इस काइंड ऑफ मैंने आउटसाइड लगाया. जी, उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वहां पे नहीं लगाएं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारे को पिरामिड नहीं लगाने का. अगर आप सोचते हैं कि वहां पे आपने क्रिस्टल का लगाया, तो क्रिस्टल का तो बिल्कुल भी नहीं लगाइए. इट इज ऑलरेडी एयर एलिमेंट, एयर से रिलेटेड है. तो वहां पर आप पिरामिड लगाने के बदले में वहां पर 5 मेटल रॉड की विंड चाइम लगाइए. वो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी. 5 मेटल रॉड की? हाँ जी. वो जो जिस रॉड में वो क्रिस्टल लगा है वो कॉपर की है, जिसमें वो हैंग कर रहा है. हाँ, क्रिस्टल लगाने की वहां नहीं है, उसको मत लगाइए. अच्छा. जी हाँ, उसको क्रिस्टल मत लगाइए वहां पर. अच्छा. और हमेशा याद रखिए, जो भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल घर के अंदर लगाना चाहिए. ये आपकी एनर्जी को बना के रखता है, ना कि एनर्जी को बाहर जाने देता है. तो अगर आपने उसको बाहर लगाया है, तो जितना कुछ है वो सब बाहर ही जाएगा. घर में आप उसको बटोर नहीं पाएंगे, उसको सेव नहीं कर पाएंगी आप. अच्छा, तो उसको मतलब अंदर कहीं भी एक शो पीस है, तो उसको, हाँ, उसको शो पीस है. आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने ले जाइए क्रिस्टल को. साउथ ईस्ट डायरेक्शन? हाँ, साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है तब रखिए, किचन है वहां रखिए. साउथ ईस्ट में क्रिस्टल को रखिए, दैट विल बी गुड. ओके, थैंक यू. यस, यू वेलकम. हेलो, यस, यू वेलकम. हाय, मुझे क्वेश्चन पूछना था रेवा कुमार से. जी हाँ, बताएं.
हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि हमने किसी ने मुझे बोला था कि हिमालयन क्रिस्टल रॉक सोल्ट का लाइट घर में रखे ना, तो वो मैंने खरीद कर रखा हुआ है, उससे कुछ फायदा होगा कि क्या मैंने ठीक किया है? दैट्स गुड। अगर आपने रॉक सी सॉल्ट घर में रखा, इट इज वेरी गुड। आप उस रॉक सी सॉल्ट को यूज करें, उसको थोड़ा पानी में डिसॉल्व करके प्रॉपरली क्लॉकवाइज उसको घर में स्प्रे करें, या उसको थोड़ा किसी भी डिश में रखे, टॉयलेट सीट के नीचे रखिए, जहां पे अगर कोई नेगेटिविटी होगी उसको दोबारा आप उसको फ्लश आउट भी कर सकते हैं। दैट इज वेरी गुड अगर आप रॉक सी सॉल्ट घर में रखते हैं, लेकिन उसको यूज करें, ये नहीं कि उसको पड़ा रहने दें, नहीं तो वो सारी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करता रहेगा और आप उससे फायदा नहीं ले पाएंगे। हाँ जी, ये लाइट है ना, वो जो क्रिस्टल का जो रॉक सोल्ट का लाइट है, नीचे बल्ब जल रहा है, नीचे बल्ब जल रहा है, इट इज गुड, आप रख सकते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू जी। So, Reva ji, अभी आपका टाइम हो गया है. I know tons of people are still calling, and if you have any question related to Vastu, give her call at 510-868-3338. Reva ji, would you like to give us a tip for this day and week, and that should be related to finance? बिल्कुल, मैं यही हमेशा जैसे कहती हूँ, और आज भी मैं इतना ही कहूंगी कि फाइनेंस के लिए इफ यू रियली वांट, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने फाइनेंस को भी, बिजनेस की जगह पे, कहीं पर भी, तो हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी गुड. Root chakra gets affecting during instability of career. So red is the color of root chakra. Wear more reds. Keep red painting or decorative elements in your house and workplace for treatment of root chakra. Root chakra is very important to grow. जो भी आपकी फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम्स है, तो ऑलवेज रिमेंबर टू कीप रेड थिंग. चाहे आप लाल रंग का कलावा भी अगर आप अपने हाथ में बांध लेते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू. एनी रेड थिंग, कोई भी रेड कलर का आप कपड़ा भी अगर अपनी पॉकेट में रखेंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट. Thank you so much, Reva ji, for being with us and helping us out. And the number to reach Vastu consultant Reva Kumar is 510-868-3338. And you can also visit her website divinevastu.net. And very happy New Year once again. It's a pleasure to have you. And Shalini, God bless you. और सभी लिसनर्स बहुत बहुत थैंक्स. तो इसी तरह चलते चलते में हमारे साथ जुड़े रहिए.